once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 5 of your geography textbook. The name of your chapter is Minerals and Energy Resources. In our previous class, we discussed about what is a mineral, and after that we have seen how geologists and geographers study minerals. Okay, so we found minerals on the Earth's crust, the upper layer or the inner layer of the Earth's surface, that is crust. Crust is divided into two layers, upper layer of upper crust and the inner crust. So normally all the minerals we found on the crust layer. Okay, so now our today's topic is mode of occurrence of minerals. What are the mode of occurrence of minerals? ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिससे कि मिनरल्स कहाँ से occur होते हैं, क्या mode है उसका? Where are these minerals found? Whatever the minerals we are using, like different types of minerals we are using gold, diamond, iron, steel, aluminium. Like there are like we are using energy resources like petroleum and so many products of petroleum we are using. Okay, so where are these minerals found? Very important question. Minerals are usually found in ores में found होते हैं. And what are ores is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. Accumulation means acquisition of any mineral mixed with other elements. जब बहुत सारे minerals या elements mix होते हैं, ठीक है, accumulate होते हैं, तो क्या है, वो ore बन जाता है. ठीक है, लाइक आयरन ओर, स्टील आयरन ओर से निकलता है. तो बट स्टील से हमें आयरन भी मिलता है, सॉरी आयरन ओर से हमें स्टील भी मिलता है, आयरन भी मिल रहा है. तो बहुत सारे मिनरल्स जब एक एलिमेंट में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स और एलिमेंट्स मिलके, ठीक है, एक और बनता है और उसमें से हमें डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं. सो द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. So now it is very much important for us to mine it, extract the minerals from the ore very carefully, because we all are suppliers or miners or anybody, okay, who is using like minerals, like they have to, especially the miners or the industries based on mining, they have to be like they take care of it, like very like they have to take so much care about the extraction of mineral, because it is commercially viable means that they are using minerals for making profit. Okay, and we are using the products from those ores. तो ores से, आयरन ओर हो या कोई भी ओर हो, ores से, जैसे बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम कहाँ से निकल रहा है, एल्यूमिनियम कौन से एलिमेंट से निकल रहा है, बॉक्साइट से निकल रहा है. कौन से ओर से निकल रहा है, बॉक्साइट ओर से निकल रहा है, ठीक है. एल्यूमिनियम कोई और नहीं है, राइट. तो वैसे ही स्टील आयरन ओर से निकल रहा है. तो उसका एक्सट्रैक्शन जो है ओर से बहुत ही लाइक केयरफुली करना चाहिए. The type of formation or structure in which they are found determines the relative age with which mineral ores may be mined. Now, what are the types of formation? Different types of formation are there. Some कुछ rocks जो हैं क्या कैसे बनते हैं, कुछ rocks आपके like वेदरिंग के प्रोसेस से, ठीक है, वेदरिंग के प्रोसेस से इकट्ठे होते रहते हैं और बहुत टाइम के बाद वो क्या है, अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है. तो कुछ मिनरल्स वैसे बन रहे हैं, कुछ मिनरल्स कैसे बन रहे हैं, लाइक दे फॉर्म फ्रॉम मेल्टेड रॉक से बन रहे हैं. कुछ कैसे बन रहे हैं, लाइक दे फॉर्म फ्रॉम अदर रॉक्स दैट आर चेंज बाय हीट एंड प्रेशर. अर्थ की हीट और प्रेशर से क्या है, अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं. So the type of formation or structure in which they are found determines the relative age. हम लोग के लिए इजी हो जाएगा ना. हमने अब जैसे झारखंड जो एरिया है वहां पे कोल बहुत ज्यादा फाउंड होता है, तो हमारे लिए इजी हो गया ना. कैसे इजी हो गया, क्योंकि वहां पे जो प्लेटू है, ठीक है, वहां पे छोटा नागपुर प्लेटू का जो एरिया है
वहां पे हमें पता है यहाँ की जो नॉर्मली जो रॉक की फॉर्मेशन है वो कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन है, राइट। सो दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि कैसे कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी, लेबर चार्जेस लगते हैं, मशीनरीज हम यूज करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी लगी, कि उसको एक्सट्रैक्ट करने का क्या कॉस्ट लगा, कितना पैसा लगा, वो भी डिटरमाइन करता है। It is therefore important for us to understand the main types of formation in which mineral occurs. Why? Obviously it is important because different minerals are used for different purposes, and if we know the location of these minerals and all these minerals, different minerals extract from like different methods, okay. So we should know about it, about the formation of the minerals, about the like we should understand this concept of like different types of minerals and how they form, right. So now mineral occurs generally in these forms. Three types of minerals normally pada: igneous rock, metamorphic rock, sedimentary rocks, or these are the three types of rocks. What are igneous rocks? What are igneous rocks? Igneous rocks are formed from melted rock inside the earth. Igneous rock कैसे बनता है? Just look at this example. Suppose this is a volcano. Okay. ठीक है, एक volcano है. अब volcano erupt हुआ है. ठीक है, यहाँ से ऐसे magma आ रहा है कि लावा किस साइड ऐसे फॉर्म में इरप्ट हो गया. ठीक है, इरप्ट हो गया. आफ्टर सर्टन टाइम क्या होगा, ये जो लावा, जो लिक्विड लावा है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रॉक कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा. वो ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा और वो क्या है, रॉक की फॉर्मेशन ले लेगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये रॉक्स जो है, ठीक है, पड़े रहेंगे अर्थ के अंदर, या फिर कि लैंड के हीट के वजह से, लैंड प्रेशर की वजह से वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. ठीक है, सो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ऑकर इन द क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स. ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये रॉक है, ठीक है, उसके क्रैक्स हुए हुए हैं, तो उसके क्रैक्स में हमें क्या है, क्रेविसेस जो है, क्रैक्स हैं, ठीक है, कुछ जॉइंट्स हैं, वहां पे हमें मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स हमें नॉर्मली मिलते हैं. द स्मॉलर ऑकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर वंस आर कॉल्ड लोड्स. जैसे स्मॉल स्मॉल क्रैक्स है, क्रेविसेस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स, क्योंकि वेन्स की जैसी शेप में होते हैं, वेन्स की जैसा दिखते हैं. और अगर बहुत ही जैसे बहुत ऐसे लाइक लार्जर जॉइंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोड्स बोलते हैं. In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous forms are forced upward upward through cavities towards the Earth's surface. Normally, in most of the cases, how they form? They formed when then when minerals are in liquid form or gaseous form या फिर molten form में होता है, उसी टाइम पे ये फॉर्म कर लेती है. क्या प्रोसेस है उसका? थ्रू कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस के टूवर्ड्स वो जाती है, फिर धीरे धीरे ठंडी होती है और उसी टाइम पे वो अपना फॉर्मेशन ले लेती है कि किस वे में वो गई है. दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज. Major metallic minerals like tin, copper, zinc, and lead are obtained from veins and lodes. These are like major minerals. Tin हो गया, copper हो गया. Like we are using copper. Like हर एक चीज में कॉपर यूज कर रहे हैं. द हेडफोन्स विच यू आर यूजिंग कॉपर का है. द बल्ब विच यू आर यूजिंग कॉपर है उसमें. ठीक है, तो जिंक हो गया, लेड हो गया. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर द मेटालिक मिनरल्स. Okay, we will talk about the types of classification of minerals: metallic, precious minerals, ठीक है, non-metallic minerals. We will talk about it. Okay. Now, second one is in sedimentary rocks. Now, what do you mean by the term sedimentary rocks? Sedimentary rocks क्या होते हैं? Sedimentary rocks are formed from layers of sands, silts, dead plants, and animal skeletons. ठीक है, dead plants, animal skeletons, like some rocks, some layers of sands. What they are accumulating at one places. Weathering का process हुआ, हवा के साथ बहुत सारे material sand वैंड आया और यहाँ आके इकट्ठा हो गया.
ठीक है। साथ में ही ठीक है कुछ डेड प्लांट्स है वो भी उड़ उड़ के आया और यहाँ इकट्ठा हो गया। कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पे आए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, वो यहीं पे रह गए। तो ये क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, बहुत लाइक ऑब्वियसली मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, ये यहीं पे इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। एक फिर क्या है, एक रॉक वाला फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स, अ नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड्स और लेयर्स, हम बेड्स और लेयर्स बोलते हैं क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो आपके मैंने जैसे बताया सैंड, सल्ट, ठीक है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, दे आर एक्यूमुलेटिंग एट वन प्लेस। और एक बेड की जैसे क्या है, ऊपर ऐसे ऊपर के ऊपर आते रहते हैं ऐसे, ठीक है, बेड की फॉर्मेशन ले लेते हैं या लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली ऐसे ही तो इकट्ठे होंगे ना, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, एक बेड के जैसे बन गया, लेयर्स बन गई है। वर्टिकली नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसा नहीं है यहाँ पे आ गया डेड प्लांट्स, यहाँ पे आ गया एनिमल्स की डेड बॉडीज, यहाँ आ गया सैंड, नो, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, कुछ ऐसे पोर्शन सैंड के आ गए, कुछ ऐसे पोर्शन सिल्ट के आ गए, कुछ डेड प्लांट्स आ गए, फिर मिक्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक उस साथ में रहते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, इससे as a result it forms it take the form of sedimentary rock. So coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. हीट, बहुत टाइम लगता है, जो अर्थ की आपकी हीट है वो लगती है, प्रेशर लगता है, उसके बाद क्या है, ये रॉक्स जो है कोई फॉर्म लेता है। Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash, salt and sodium salt. These are found as a result of evaporation, especially in arid region. ठीक है, ये स्पेशली जैसे एरिड रीजन में क्या है, अभी आपने सुना होगा कि हमारे बीकानेर में जो है पोटैश की माइनरीज मिली है, ठीक है। तो स्पेशली जो एरिड रीजन होता है ना, वहां पे हमें इस टाइप की सेडिमेंट्री मिनरल्स मिलते हैं कि कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वाटर क्या होता है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाते हैं और उस वाटर के अंदर जितने कुछ मिनरल्स होते हैं वो क्या हो रहा है, कुछ मिक्सअप होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से मिनरल्स हैं, जिप्सम हो गया, पोटैश सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया, ऑल दीज आर लाइक different types of sedimentary rocks which found in arid region. Next is another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. Now, residual means क्या होता है, left out होता है. So residual mass of weathered material it implies when decomposed rocks, जो भी decomposed rocks होते हैं वो वाटर से वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट इन दैट रॉक विच आर सॉल्युबल आर रिमूव्ड एंड द रेसिडुअल मास इज रिटेन्ड इन द रॉक। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक कोई भी डिकम्पोज रॉक्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज रॉक है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो उसके ऊपर की जितनी लेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वॉश आउट हो जाती है, और जो लेफ्ट आउट, वॉश आउट के बाद जो लेफ्ट आउट रह जाता है ना सरफेस में, उसको हम बोलते हैं सरफेस रॉक्स, ठीक है। बॉक्साइट इसका एक एग्जांपल है, बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे एंड फ्रॉम बॉक्साइट वी गॉट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इज वन मोर mode is there, ठीक है, step is there for the formation of rocks. Certain minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floor and the base of hills. These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water. Gold, silver, tin, platinum are most important among such minerals. Now, some minerals are there जो alluvial deposits होते हैं, ठीक है, they may occur as alluvial deposits और वो सैंड्स के अंदर होते हैं, ठीक है, या फिर जो हिली एरियाज हैं, जो हिली एरियाज की बेस से है वहां पे हमें मिलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं।
नॉर्मली कौन कौन से मिनरल्स होते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स में आपके? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, ये वाले जो मिनरल्स हैं आपके placer deposits कहलाते हैं. Okay, so now next is the ocean water contain vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance. However, common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean waters. The ocean beds too are rich in manganese nodules. Now ocean water, obviously ocean water में हमारा बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आपके जो है वास्ट क्वांटिटीज में मिनरल्स पाए जाते हैं. इट कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, बट ऑब्वियसली दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. सम कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि क्या यूसेज है, ठीक है, उसका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर हमें अभी तक पता नहीं चला है कि उसका हम क्या यूज कर सकते हैं. But like common salt, magnesium, bromine, we are using these minerals from the ocean water. Okay, we are taking it from the ocean water. We are accumulate these types of minerals from the ocean water. Okay, and manganese nodules. Manganese भी जो है आपका ocean beds में काफी अच्छे amount में पाया जाता है. Okay, so now if we classify minerals, classification of minerals are of 3 types: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स आप एकदम इजीली याद रखिए, ऐसे मिनरल, ऐसे मेटल्स या ऐसे मिनरल्स जिसमें आपने मैग्नेट सुना होगा, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम मेटालिक बोलते हैं. ठीक है, sorry, not magnetic, I am really sorry, that is ferrous minerals. Okay, मेटालिक मिनरल मतलब कि जो मेटल है, ठीक है, एक मेटल आप समझते हो, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऑल दीज आर लाइक मेटल्स. ओके, और कुछ मिनरल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपके जिसमें आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है, उसमें आपका मेटल प्रेजेंट नहीं रहता है, मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम नॉन मेटेलिक बोलते हैं. एनर्जी मिनरल्स आपको पता ही है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर एनर्जी मिनरल्स. तो मेटेलिक मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस. फेरस स्पेशली, वैसे फेरस और नॉन फेरस ही होते हैं. प्रेशियस हमने एक टाइप मेटेलिक मिनरल्स को एज अ क्लासिफाई कर दिया. व्हाई? क्यों? बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड, ठीक है, एंड दे आर सो एक्सपेंसिव एंड दे आर रेयरली फाउंड. दैट्स व्हाई हमने जो ये प्रेशियस मिनरल्स है इसको अलग से क्लासिफाई कर दिया अंडर मेटेलिक मिनरल्स. फेरस, फेरस फेरस क्या होता है? आपने साइंस में भी पढ़ा है, आयरन के लिए जो आई थिंक यूज भी किया जाता है, फेरस ही बोला जाता है आयरन को. तो फेरस क्या होते हैं? जिसके भी अंदर आयरन होता है, जिस भी मेटल के अंदर आयरन होता है उसको हम फेरस बोलते हैं, लाइक आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. और ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स. मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं. जो स्पेशली फेरस तो है जिसमें आयरन होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है. नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ऑल दीज आर लाइक नॉन फेरस मिनरल्स. प्रेशियस जो रेयरली फाउंड होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऑल दीज आर प्रेशियस मिनरल्स. अब नॉन मेटेलिक में क्या क्या आ जाएंगे? ठीक है, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ऑल दीज आर लाइक रॉक का स्ट्रक्चर दिखता है अगर हम इनको देखें तो. ठीक है, यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, निकल, बॉक्साइट, ये सारी चीजें हम देखते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह, तो अलग से एक फॉर्म होता है इसका, मेटल सा मेटल दिखता है हमें. ठीक है, आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि जैसे एक स्टील का एक गेट है और एक आप बोल दीजिए कि एक वॉल है, दोनों में डिफरेंस कर सकते हो ना. ठीक है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कितने डिफरेंट है ना. तो नॉन मेटल क्या है आपकी? जो भी स्पेशली रॉक स्ट्रक्चर की, रॉक फॉर्म में होता है, ये रॉक स्ट्रक्चर होता है इसका. ठीक है, माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब आपके नॉन मेटेलिक है. एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये आपके एनर्जी रिसोर्सेज है. Okay, so now there is an interesting fact. Rat hole mining. क्या होता है rat hole mining? rat hole mining जैसे
चूहा जैसे अपना होल बनाता है ना, वैसे ही एक रेड होल माइनिंग एक टर्म यूज करते हैं हम. Do you know the most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government. हम बहुत सारे मिनरल्स हैं. इंडिया इज अ वेरी रिच रिसोर्स कंट्री and we can only extract those resources after taking permission from the government. But in most of the tribal areas of the northeast India, minerals are owned by individuals or communities. बहुत से ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनकी खुद की इंडिविजुअल्स की क्या है, उनके मिनरल्स वो ओन करते हैं. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, and dolomite, etc. Coal mining in Jowai and Chirapunji is done by family member in the form of a long, narrow tunnel known as red coal mining. What they do, family owners, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है आपका, एक समझ लीजिए एक घर जितने भी बनता है, ठीक है, या फिर 100 बीघा जमीन है उनके पास, उसमें क्या कर रहे हैं वो, ऐसे रेड होल, रेड्स कैसे अपने होल्स बनाते हैं, ऐसे एकदम स्ट्रेट ऐसे बनाते हैं ना, वैसे ही फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, एक होल को डिग करते हैं, ठीक है, डिग करते रहते और फैमिली ओनर्स ही क्या करते हैं, फिर वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इस एक नैरो टनल सा बना लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेड होल माइनिंग बोलते हैं. So the National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. ठीक है, ऑब्वियसली इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं, अब जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, अब कौन से एरियाज आपको माइनिंग के लिए सूटेबल है, नहीं है, और हो सकता है कोई एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे आप माइनिंग कर रहे हो, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि ऐसी जो एक्टिविटीज हो रही है चिरापुंजी, जोवाई वगैरह में, ठीक है, आपके मेघालय वगैरह में, वहां पे ये सारी एक्टिविटीज को क्या है, अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो इलीगल है. ओके, सो नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन पिट माइन, क्लास 8 में पढ़ चुके हो आप, एक्वेरे एंड एन अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स. क्या होते हैं ये, आई विल आस्क यू टुमारो, यू हैव टू फाइंड आउट दिस. ओके, what is the difference between an open pit mining, a quarry, and an underground mine with shafts? So now India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. Obviously, whatever the resources, whatever the minerals we found in Rajasthan will not, we will not able to found those minerals in Jharkhand or Chhattisgarh or Odisha. And whatever the minerals we found in those areas, we will not able to found all those types of minerals here in Rajasthan. Okay, so ये जो distribution है वर्ल्ड वाइड और इवन इंडिया में भी क्या है, काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है राजस्थान है तो वहां पे माइनिंग, आयरन की माइनिंग भी मतलब एक आयरन की माइनिंग है तो हर एक स्टेट में एक आयरन की माइनिंग होगी, कोई जरूरी नहीं है. नेचुरल है, नेचर है, ठीक है, फिजिकल फीचर्स डिफरेंट है, तो ये ऑब्वियसली अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड भी है. So broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals. जो peninsular rocks है, peninsular plateau बोलते हैं, जो आप जो डेक्कन प्लेटू बोलते हो, वहां पे सबसे ज्यादा आपके रिजर्व्स हैं कोल के, मेटालिक मिनरल्स के, माइका के, और भी बहुत सारे ऐसे नॉन मेटालिक मिनरल्स है जो हमें वहां पे मिलते हैं. Sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula, western घाट, ईस्टर्न घाट पढ़ा है, ये वाले जो फ्लैंक्स हैं, ये वाले जो एरियाज है, कोस्टल एरिया स्पेशली, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, हमें सेडिमेंट्री रॉक्स काफी मिलते हैं. गुजरात, असम है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. गुजरात में, असम में आपके पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं. राजस्थान with the rock system of the peninsula have reserves of many non-ferrous minerals. Non-ferrous minerals काफी मिल जाते हैं हमारे, जैसे कि पोटैश वगैरह हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, जो इवेपोरेशन के प्रोसेस से लाइक रह जाते हैं, बताया था ना. तो एरिड एरियाज में हमें ऐसे नॉन फेरस मिनरल, राजस्थान में हमें नॉन फेरस मिनरल्स मिल जाते हैं. द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स. ठीक है, इकोनॉमिक मिनरल्स जो हैं हमें काफी, ये उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और ये एरिया जो है वहाँ पे हमें इकोनॉमिक मिनरल्स मिल जाते हैं. These variations exist largely because of the differences in the geological structure, process and time involved in the formation of minerals. ये जो वेरिएशंस हैं किस वजह से हैं? जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के वजह से, जो प्रोसेस और टाइम है डिफरेंट प्रोसेसेस के वजह से, और जो टाइम इन्वॉल्व है, जो टाइम इसमें लगता है बनने में, वो इन वजह से ये वेरिएशंस हैं. ठीक है, मिनरल्स के फॉर्मेशन में. सो नाउ let us now study the distribution of a few major minerals in India. Always remember that the concentration of minerals in the iron, in the ore, the airs of extraction, and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine. So now what is a mine? You have seen like some areas of like Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand especially, ठीक है, और you can say some areas of Madhya Pradesh. Like इनको क्या बोला जाता है? माइनिंग एरिया ही बोला जाता है, माइनिंग लैंड बोली जाती है. Why? वहां पे देखते हैं कि हमें एक माइनिंग के लिए एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमें रिसोर्स क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. सबसे पहले कि वहाँ पे माइन होनी चाहिए. ठीक है, वहाँ पे आयरन ओर की या किसी भी बॉक्साइट की हमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. फिर वहाँ पे लेबर्स होने चाहिए. फिर हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे मतलब जब हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसी के पास क्या है इंडस्ट्रीज. अगर आयरन इंडस्ट्रीज हम देखें, स्टील इंडस्ट्री बोले, बोकारो में है, झारखंड में है, तो वो क्या है वहाँ पे पास में ही क्या है, कोल की इंडस्ट्री भी है और आपकी आयरन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा माइन होता है. सो टू फुलफिल ऑल द डिमांड हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती है कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. क्या लेबर्स हैं, क्या वहाँ पे सफिशिएंट मिनरल है, क्या इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है. ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. सो नाउ द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ठीक है, फेरस है, फेरस मिनरल्स. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स वन बाय वन कि फेरस, नॉन फेरस, प्रेशियस मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है. ओके, so this is all about today. Thank you so much for joining the class and go through the topic, and if you face any problem do let me know. Thank you so much. Bye bye, take care.